Hello friends, how are you? Welcome to Tripanasi Center. Let's see what is our topic today. Is a acidic rain. The acid rain here is occur when to sulfur dioxide means SO2 and the oxide of nitrogen means X is NOx are there is emit into the atmosphere undergoes to chemical transformation and are absorbed by the water droplet in a cloud. This cause of formation of the sulfuric and the nitric acid in the rain clouds. The droplet then fall to the earth and the rain, snow or mist. If the rain fall through the polluted air, it the pick up more and these gas are increasing its acidity. This is called to the acid rain. The acid rain is thoroughly by the peak of the more gases by the increasing of acidity. It is called to the acid rain, and this can increase the acidity of the soil and effect of the chemical balance of lake and the stream. This acid rain is defined as any types of precipitations with a pH that is usually low. A pH of less than a 5 is a definition of the acid rain. The acid rain is a serious environment problem that affects the large part of the world. The here question, what is the pH? What is the pH? The pH is the acid rain measuring using to scale is called to the pH. That acid rain measuring scale is called to the pH because at release of hydrogen ion, the acid content of solution is the based on the concentration of hydrogen ion and expressed to the pH. This scale use of measuring of acidic rain example 0 is the maximum acidity and the 7 is the neutral point in the middle of the scale and the 14 maximum alkaline is the opposite of acidity. There is the most important here. I will show this diagram. And then a smaller to the number on the pH scale, the more acidic as the substance is. A rain measuring between 0 to 5 on the pH scale is acidic and there is called the acid rain. There is acid rain is a 5 pH. The clean rain is usually has a pH of 5.6. It is slightly acidic because a carbon dioxide which is naturally present in the atmosphere. On the other hand, the vinegar is a very acidic and has a pH is of 3. The next here is a source of acid rain. The sulfur dioxide is generally is a byproduct of the industrial process and burning of fossil fuels. Also, or is a smelting coal fire is power generate and the natural gas is a processing are the main contribute to the sulfur dioxide in the atmosphere. The main source of oxide of nitrogen means X is NOx is a emissions of their combustion of the fuel into motor vehicle, residential and commercially furnace is the industry and electrically utility and boiler engine and other equipment. Their next here effect of acid rain is a causing of acidification of the take and the steam of the contribute to the damage of the trees many of sensitive forest soil. Its addition acid rain is accelerate the decline of building material and paint, including a heritage of buildings, statue and the sculpture, and that's a part of our nation's cultural heritage. And because of the falling of the earth's sulfur dioxide, SO2 and the nitrogen oxide, and the gases and their particulate matter to drive it to sulfate and the nitrate contribute to the visibility of degradation and the harms for public health. Some major effect of the acid rain is a vegetation and building and human health are given here. The effect of the surface water and aquatic animal. The low pH in the surface water has occurred as a result of acid rain can cause of damage of fish and other aquatic animal. Acid release of aluminums into the water and this builds up a layer of the aluminum hydroxide in the gills of fishes. At the pH are low than to the 5, most fish eggs do not be is a hatch and the lower pH can kill adult fish. As a lake become a more acidic, biodiversity is reduced. And the damage to the plants, acid rain is a highly injurious of plant. Acid rain are depleted of minerals for the soil and then it is a stung to the growth of plant. It is a cause of death of young shoots and the leaves turn to the yellow and the fall off. The fine root structure is a damage and the whole plant eventually is there die. Acid rain can be slow the growth of forest and cause the leaves and the needles to turn brown and fall off the die. In a extremely case of the trees as the walls area of the forest can die.
The next is the effect on the human health. The human beings may be also be affected due to the acid rain. The fine particles formed from the same gas is dissolved in the water and form as the acid rain. Sulfur dioxide and nitrogen dioxide may be cause of illness of human. The next is the damage of soil. The acid rains may be take to soil more acidity. It is may be cause a mineral nutrient to be washed away. It can release a toxic chemicals such as aluminum and mercury into the soil. This acid rain could be make a soil less of fertility. There are microbes which are unable to the tolerate to low pHs may be killed due to the acid rain. This is because of enzyme and this microbe may be is denatured by the acid. And here other adverse effect here, the acid rain can also cause a damage for contain building material can is the history cause is the momentums and acid rain cause or erosion of the ascent momentum. There is because of the sulfuric acid the rain is a chemically react with the calcium is the stone. The limestone, sandstone and marble granite to be create of gypsum, which this take flax off. The acid rain also cause an increasing rate of oxidation for iron affecting iron is a furniture, grills and door, windows and other materials etc. The acid rain can be reduced of visibility due to the presence of phosphate and nitrate to be atmosphere due to the acid rain. Here show the diagram the source effect of the acid rain. There is a flash gas emergence, nitrogen gas, nitrogen oxide, ozone, soil deposition, vehicle explosion and nitrogen oxide, acid dissolved aluminum soil, acid rain, aluminum salt and the acid kill of fish, tree damage by acid zone. There is a very bad effect of the acid rain here. So here is the prevention of acid rain. There are several ways of which the sulfur dioxide, nitrogen oxide emission can be reduced, and the coal can be crossed and the washed before a burning. And the oil can be treated by the removal of sulfurs, and the clean system can be filled into the chimney to remove sulfur dioxide before it can be released into the atmosphere. And the improvement is the frequencies can be built which warm the fuel more effective and produce a less pollution. And the vehicle exit can be filtered into vehicles which remove a pollutant from a engine emission. दोस्तों हमारा अगला टॉपिक जो है एसिड रेन यानी जो है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा से आप भली भांति परिचित ही होंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा शब्द नहीं है। अम्लीय वर्षा जब बरसात की पहले बूंद पड़ती है तो वो अम्लीय वर्षा से प्रचुर मात्रा में परिपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि पहले के समय में जब बरसात की पहली रेन पड़ती थी तो लोग बहुत खुशी मनाते थे, लेकिन आज के समय में अगर बरसात की पहली बूंद पड़ती है तो उसमें जो है एसिड रेन इतनी बड़ी होती है कि किसी को भी जलाने के लिए, बीमारी करने के लिए पर्याप्त होती है। कहते हैं पहले के समय में जो होता था मोर टकटकी लगा के जो है आसमान पे देखती थी कि बूंद के पहला कण जो है मुझ पे गिरे, लेकिन आज जो है ये जो मोर होती है वो ये कहती है कि मुझ पे मत गिरना, नहीं तो मेरा जो है पंख जल जाएगा। तो इसका कारण हम मनुष्य ही हैं जो आए दिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाते चले जा रहे हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या जो इसका सबसे बड़ा कारण बनता है वो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है यानी CO2 बनता है। वह नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी इसके बहुत बड़ा उत्तरदायी बनते हैं और वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं। इनकी रासायनिक रूपांतरण होता है और वे बदले में पानी की बूंदे द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। इसे वर्षा के बदले में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रेट अम्ल का निर्माण होता है। ये बूंद वर्षा और बर्फ और कोयले के रूप में भी पृथ्वी पर गिरती है। यदि वर्षा प्रदूषित वायु से होकर गिरती है तो वह इस गैसों का स्वयं में और अधिक मात्रा में संयोजित करती है और इसकी जो है अम्लता बढ़ती ही चली जाती है। इसके कारण क्या है, मृदा की अम्लता बढ़ जाती है और झील व नदियों का जो है रासायनिक समय प्रभावित होती है। अंततः अम्लीय वर्षा किसी भी प्रकार से अवक्षेप हो सकती है जिसके पीएच का मान असामान्य रूप से कम हो। कहते हैं सामान्यतः पीएच का जो है 5 से कम मान वाले अवक्षेप को अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है जो कि विश्व को अधिकांश भागों को काफी प्रभावित करती है। तो अम्लीय वर्षा जो है जनजीवन के लिए अति जो है नुकसानदायक है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके समक्ष ये आता है कि पीएच क्या होता है। देखिए दोस्तों, पीएच जो होता है किसी चीज को मापने का संयंत्र होता है, यानी वर्षा की अम्लता या एक पैमानों पर मापी जाती है जिसे हम पीएच पैमाना कहते हैं। यानी किसी मापने की प्रक्रिया को पीएच मान कहते हैं जिसमें हम एसिड, बेस और न्यूट्रल को नापते हैं, क्योंकि अम्ल हाइड्रोजन आयनों का मोचन करती है और विलायक की अम्लता का मापन हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के रूप में किया जा सकता है। कहते हैं पीएच दरअसल हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को दर्शाता है।
यह पैमाना वर्षा की नमूने की मात्राओं को कम करता है। अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू जो होती है 0 से 14 तक होती है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसका क्या वैल्यू कहाँ पर होती है। अगर 0 से लेके 6.9 के आसपास है तो इसका मतलब है कि वो जो है अधिक अम्लीय है, यानी अम्बल को रिप्रेजेंट करता है। अगर 7 पे रहती है तो 7 जो होती है दोस्तों, ये जो है उदासीन को जो है रिप्रेजेंट करती है, यानी न्यूट्रलाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। अगर ये 7.1 है से लेकर 14 तक है तो इसका मतलब ये क्षारीय को दर्शाती है। तो इससे आप पीएच वैल्यू को समझ सकते हो, जो कि समझना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। अगर देखा जाए पीएच मानों में मान जितना कम होगा पदार्थ उतनी ही अम्लीय होगा, यानी पीएच के मान जितना कम होगा उतना ही अम्लीय होगा। पीएच मान जो है पैमानों पर 0 से 5 तक जो है मान जो है वाली वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है, यानी 0 से 5 तक जो वर्षा होती है उसी को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। स्वर्ण वर्षा का सामान्य जो है पीएच मान 5.6 होता है, यानी 5.6 जो होती है सामान्य वर्षा का मापन होती है। यह वातावरण में जो है सर्वभाविक रूप से विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड के कारण थोड़ी सी अम्लीय होती है। और दूसरी ओर सिरका बहुत अम्लीय है जिसका पीएच मान 3 है। उसके पश्चात है हमारा अम्लीय वर्षा के स्रोत। देखिए अम्लीय वर्षा का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड है, यानी सामान्यतः औद्योगिक प्रक्रियाओं का उत्पादन है, यानी उप प्लस उत्पादन है वह जीवाश्म ईंधनों को जलने से होती है। और जीवाश्म ईंधन आपको पता है कि पेट्रोल, डीजल, ठीक है, और कोयला ही होता है जो जीवाश्म ईंधन होते हैं। तो इससे जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है और इसकी वजह से जो है अम्लीय वर्षा का सबसे बड़ा कारण बनती है। कहते हैं अयस्क प्रज्वलन और कोयला आधारित शक्ति संयंत्र जो है प्राकृतिक गैस अभिक्रिया वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की प्रमुख सहयोगी है। अब दोस्तों देखिए यहाँ कोयला का इस्तेमाल जो होता है बड़े बड़े बिजली संयंत्रों में की जाती है, यानी बिजली उत्पन्न करने के लिए कोयला का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, कोयला जो है धड़ल्ले से उपयोग किया जाता है जिससे बिजली उत्पन्न होती है। और सरकार क्या कर रही है, वही इतना सारा महंगा बिजली को मुफ्त कर रही है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा ये आप जरा सोचिए और विचार कीजिए। कहते हैं नाइट्रोजन को ऑक्साइड गैसों का जो है उत्सर्जन का मुख्य स्रोत जो है मोटर वाहन, घरों और व्यापारी भट्टियां, औद्योगिक एवं विद्युतीय प्रौद्योगिक बैरलों और इंजनों व अन्य उपकरणों में ईंधन के दोहन के से भी उत्पन्न होती है। तो ये सारे कारण जो होती है वो अम्लीय वर्षा के स्रोत के रूप में कार्य करती है। और सबसे बड़ा कारण जो है मोटर वाहन होते हैं, जो कि बहुत बड़ा नुकसानदायक होता है। दोस्तों आगे जो है अम्ल वर्षा के प्रभाव। देखिए अम्लीय वर्षा का प्रभाव भी कई मायने में बहुत ही गंभीर समस्या उत्पन्न करती है। अम्ल वर्षा जो है झील व जलधाराओं में अम्लीकरण हो जाता है, जिसके कारण पेड़ों व कई संवेदनशील एवं जो है मिट्टी क्षतिग्रस्त हो जाती है, यानी जो मृदाएं होती है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसको मिट्टी कहते हैं। इसके अतिरिक्त अम्ल वर्षा के भवन सामग्री, रंग, संस्कृति महत्व को भवन जो है पूर्तियों आदि की क्षति तेजी से होती चली जा रही है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है ताजमहल है। ताजमहल जो है पहले कितने अलग हुआ करती थी, संगमरमर की बनी हुई थी, लेकिन आज जो है पीलापन के चादर में ढकी हुई है। चाहे आप जितना मर्जी उसमें रंग कर लो, पुताई कर लो, जितना मर्जी केमिकल डाल लो, लेकिन कहते हैं रेन वर्षा होगी तो फिर से वो पीली की पीली हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके समक्ष है। पृथ्वी पे पहुंचने से पूर्व जी जो है सल्फर डाइऑक्साइड का जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस उनके कणकीय पदार्थ जो है बेउत्पीड़ित यानी पार्टिकल मैटर ऑफ डाइऑक्टिव्स सल्फेट को नाइट्रेट दृश्यता निमीकरण करते हैं और ये जन स्वास्थ्य को भी हानि काफी पहुंचाती है। कहते हैं अम्लीय वर्षा वनस्पति, भवन और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले मुख्य जो है प्रभाव नीचे कुछ दिए गए हैं। यहाँ पर तो सबसे पहले जो है धरातलीय जल तथा जल जीवों पर प्रभाव। कहते हैं अम्लीय वर्षा के कारण धरातलीय जल जो है पीएच का मान कम होने से मछली व अन्य जलीय जीवों को भी हानि पहुंचती है। अम्लता जल में जो है एल्युमिनियम निमुक्त होती है और मछलियों के जो है गलफरों में एल्युमिनियम डाइऑक्साइड की एक परत के रूप में निर्मित हो जाती है। और पीएच का मान 5 से कम होने पर मछलियों के अंडे से बच्चे पैदा नहीं हो पाते हैं। इससे कम पीएच मान से वयस्क मछलियों को मर जा सकते हैं और झीलों के अधिक अम्लीय होने से जैव विविधता को बहुत काफी क्षति पहुंचती है। आपने सुना भी होगा कहीं किसी क्षेत्र में कि यहाँ पर जो है सारी मछलियां मर गई। कारण क्या था, वहां के जो था जल प्रदूषित हो गई। जल में क्या था, सल्फर डाइऑक्साइड था, यानी जिसका अम्लीय वर्षा के कारण जो था सारे मछलियों के ऑक्सीजन नहीं मिला और सल्फर डाइऑक्साइड भरने की वजह से मृत्यु हो गई। मान लीजिए कुछ सल्फर डाइऑक्साइड जो है मछलियों ने इनहेल कर लिया और जब आप उसको खाना के भोजन के रूप में खाओगे तो आपको भी सल्फर डाइऑक्साइड बॉडी में जाएगा और आपको भी उसी प्रकार से क्षति होगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक उपभोक्ता में कुछ चीजें जो होती है डबल होती चली जाती है। तो ये चीजें बहुत काफी इंपॉर्टेंट रहता है और कहते हैं ये इंपॉर्टेंट तो रहता ही रहता है, प्लस जो है इनकी आनुवंशिकता पे भी प्रभाव पड़ता है। यानी मछलियां जो है जीवन आगे उत्पत्ति करने के सक्षम ही नहीं रह पाती है। इनके सारे जो अंडे होते हैं वो नष्ट तहस नहस हो जाते हैं। तो मछली की
उत्पादन क्षमता भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत काफी जैव विविधता हर्ष होती चली जाएगी। उसके पश्चात जो है पादपों की क्षति। देखिए, अम्ल वर्षा पादपों के लिए अत्यंत हानिकारक है। अम्लीय वर्षा जो है मिट्टी से खनिज को अलग कर देती है और जिससे पौधे बौने रह जाते हैं और छोटी शाखाएं मृत्यु हो जाते हैं। पत्तियां पीली पड़कर गिर जाती है और महीन जड़ जो है संरचना नष्ट हो जाती है और पूरा पादप मृत्यु हो जाते हैं। अम्लीय वर्षा से वनों की वृद्धि भी मद पड़ जाती है और पत्तियां और पुष्प भूरे होकर गिर जाते हैं और इन चरम स्थिति में जो है पूरा वन क्षेत्र मृत्यु हो सकते हैं। तो देखिए कितना बड़ा क्षति पहुंच सकती है अम्लीय वर्षा की वजह से कि पूरे वन जीवन नष्ट हो जाएगी। ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है अम्लीय वर्षा का, जिसको आज हर एक मनुष्य को सोचने की आवश्यकता है। अब देखते हैं मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, मनुष्य भी अम्लीय वर्षा के कारण प्रभावित हो सकते हैं। कुछ गैसों के बरीक कण जो है अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैस बनती है, जिसमें मनुष्य के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अगर देखा जाए मृदा की क्षति यानी मिट्टियों की जो क्षति पहुंचती है वो भी बहुत बड़ा विनाशकारी सिद्ध होगी। अम्लीय वर्षा के परिणाम स्वरूप मृदा और अधिक अम्लीय बन सकती है और इसके कारण खनिज पोषक तत्व घुलकर नष्ट भी हो सकते हैं। इसके कारण जो है विषाक्त रसायन जैसे एल्युमिनियम व पारा मृदा में संयोजित हो सकते हैं और इस प्रकार अम्लीय वर्षा जो है मृदा को कम उर्वरक बना सकती है। अम्लीय वर्षा के कारण जो है पीएच को सहन करने में असमर्थता यानी जीवाणु मर सकते हैं। ऐसा इन जीवाणुओं को एंजाइमों में अम्ल के कारण विकृति हो सकती है। देखिए दोस्तों, बहुत से मिट्टी में ऐसे जीव जंतु होते हैं जो कि किसानों के मित्र भी कहलाते हैं और इससे जो है उर्वरकता क्षमता भी बनी रहती है। लेकिन अम्लीय वर्षा के कारण क्या होगा, ये सारे के सारे जो होंगे तहस नहस हो जाएगा और जो है जीव नष्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से मिट्टी की उर्वरकता क्षमता भी दिन प्रतिदिन नष्ट होता चला जाएगा। उसके पश्चात हमारे समक्ष अन्य प्रतिकूल प्रभाव। देखिए, अम्लीय वर्षा से खास भवन निर्माण सामग्री एवं ऐतिहासिक स्मारकों को भी क्षति पहुंच सकती है। देखिए दोस्तों, मैं पहले ही आपको याद दिला चुका हूं कि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है ताजमहल है, जो कि पूरे तरह से पीला पड़ चुका है। अम्लीय वर्षा से प्राचीन स्मारक का जो क्षरण हो सकती है, यानी पुराने पुराने जो बड़े बड़े बनाए गए हैं जो स्मारक है वो क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल के विद्वान होने पर उसके पत्थर जैसे चूना पत्थर का बना हो, बलुआ पत्थर का बना हो, संगमरमर का, ग्रेनाइट में विद्वान कैल्शियम से अभिक्रिया से फलस्वरूप जिप्सम के बनने के कारण ऐसा होता है। जब यह पपड़ी के रूप में गिरना आरंभ हो जाता है तो अम्लीय वर्षा के कारण लोहे के ऑक्सीकरण की दर बढ़ती चली जाती है, जिससे लोहे के फर्नीचर जो ग्रिल, दरवाजे, खिड़कियां व अन्य पदार्थ प्रभावित होती है। आपको पता है कि लोहे के बने हुए सामग्री जो है इससे तहस नहस हो जाएगा क्योंकि अम्लीय वर्षा जो है इसको बिल्कुल ही इस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कहते हैं अम्लीय वर्षा के कारण जो है वातावरण में उपस्थित सल्फर व नाइट्रेट के कारण दृश्यता कम भी हो जाएगी, यानी देखने में भी कम आपको नजर आएगी, जिसकी वजह से एक्सीडेंट का कारण भी बनेगा। तो अम्लीय वर्षा कई मायने में इंसान के लिए अति हानिकारक है। अब यहाँ पर एक डायग्राम देखिए, अम्ल वर्षा के स्रोत के प्रभाव। देखिए कितना प्रभाव दिखाया जा रहा है कि धुएं गैस विकिरण निकल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड धुएं के साथ निकल रही है, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल वातावरण में फैल रही है, वाहन रोचक अम्ल एल्युमिनियम की मृदा में घोल देती है और इस प्रकार जो अम्लीय वर्षा होती है एल्युमिनियम लवण और जलीय मछली मर जाते हैं। अम्लीय से जो ओजोन पेड़ जो है नष्ट भी होते चले जा रहे हैं। तो ये डायग्राम भी आपको बताने के लिए बहुत सुचारू है, इसको समझ सकते। कहते हैं ना, समझदार व्यक्तियों के लिए इशारा ही काफी है। तो इशारा आपने समझ लिया है कि ये बहुत ही खतरनाक है और इसको हर एक इंसानों को समझने की आवश्यकता है। अब आगे जो है देखिए अम्ल वर्षा की रोकथाम कैसे किया जा सकता है। कहते हैं अनेक तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि कोयले को जलाने से पहले छोटे टुकड़े बनाकर जो है यह धोया जा सकता है। तो इससे भी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस नॉन निकले और जो है सल्फर डाइऑक्साइड नॉन निकलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तेल का उपचार करके सल्फर को अलग किया जा सकता है और चिमनियों से सल्फर डाइऑक्साइड के वातावरण उत्सर्जन को रोकने के लिए इनमें जो है सफाई करने वाली प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों कुछ ना कुछ उपयोग करके जो है इसको कुछ ना कुछ कम किया जा सकता है। अगर नहीं किया तो मानव जीवन का अस्तित्व शायद नष्ट हो जाए। साथ में इससे जो होता है ईंधन को अधिक प्रभावित ढंग से जलाने एवं प्रदूषण कम करने के लिए उच्च भट्टी का प्रयोग में लाई जानी आवश्यक है। वाहनों में निकास नाली को लगाकर इंजन उत्सर्जन को जो है प्रदूषक को पृथक किया जा सकता है। तो ये कई मानने में इंपॉर्टेंट भी है और इसको हमें अपनाना भी चाहिए और इसके लिए कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता है। आपने स्वयं इस बात को समझना है कि जितना हो सके पर्यावरण हितैषी बनो। ठीक है, इको फ्रेंडली लिख देने से इको फ्रेंडली नहीं हो जाता है। जब तक हम इसको जो है अपने कार्य
हमारे क्षमता में और अपने जो है जीवन में इसको न लेके आए। तो हर एक बच्चा जो भी वीडियो देख रहा है उनको इस बात को समझना है कि हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है खत्म हो जाता है। आगे का टॉपिक और भी इंपॉर्टेंट है, रेडिएशन के ऊपर है, जिसको हम जानेंगे और समझेंगे। तो आप इसी तरह त्रिपान सेंटर के साथ बने रहिए और ज्ञान प्राप्त कीजिए और ज्ञान का जो है सुचारू उपयोग कीजिए। दोस्तों साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहेगा कि आपने एक बात भूलना नहीं है कि जो है इसको